So a very warm welcome to everyone. We are back with Sonam ma'am here. So we though apologize for the technical glitches everyone is facing, but still you can see the enthusiasm that Sonam ma'am has on her face right now. And also I'm able to see we are all excited with so many comments. So Sonam ma'am, I think everyone is damn happy to have you here in the live session. Thank you. Thank you. I'm audible. I'm Okay. audible, Vijay. Yes, ma'am, I'm you're audible, Vijay. audible. Yeah, greatly audible. Yeah. Yes, ma'am. Yeah. Yes. See, I am really happy So to let's, have you all. yeah. Yeah. Yes, ma'am, you can continue. Yeah. Please. Okay. So first of all, to tell you about Sonam ma'am, so she is the founder of Atman. So at the moment, I'll not elaborate, but I'll just suggest you to go and visit her Instagram page. Although you can visit her in her location as well. So she is flourishing with 13 plus years of experience. She has made a difference in the field of rehabilitation, counseling, and training. She has numerous credentials to her name. And when it comes to illustration of her accolades, then she is, I demand your attention that she is named as one of the 100 phenomenal women by INBA. So I hope viewers are able to get the idea who is present between us. And I request some of the words from ma'am, and then we'll be proceeding with the topic today. It's really, first of all, it's very touching. From the morning you people are working, the way you are working, to see that energy, I was excited to come here and see, talking Exactly. about the topic. It's really a sensitive topic, which, I thought we can discuss it here because we are creating awareness and sensitization. So breaking the stigma is very, very important. And speaking about this topic, I think so. It has a great importance. So Okay. yeah. So, to tell you about today's topic is breaking the silence, which is child sexual abuse. So, first of all, child sexual abuse is a kind of a topic that I feel everyone needs to aware of amid the burning issues our country is facing. This is one of the issues where which is masked issue in our society because this generally doesn't come front. So, ma'am, first of all, when it comes to sexual abuse, every age group is affected. But why are children age group more prone to such acts? See, when you go to the childhood, it is very innocence is there. वहाँ बहुत innocence है, वहाँ चंचलता है, मासूमियत है. वो टच करके देखते हैं, सबको हाथ लगाते हैं. कोई उन्हें हाथ लगाता है तो they can sense it. वो अभी सीख रहे हैं, वो समझ रहे हैं. तो what is wrong touch? They don't know. किसी ने उन्हें बताया Exactly. नहीं, है ना. वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते. सपोज somebody किसी ने गलत टच किया या गलत नियत से देखा या कुछ आंखें हैं ऐसी, कुछ इमोशंस हैं ऐसे, तो दे कांट एक्सप्रेस इट. अभी वो उतनी कंडीशनिंग नहीं हुई है उनकी. सेकंड, थोड़े बड़े होते हैं, मान लीजिए थोड़े बड़े हो जाते हैं और बात करना सीखते हैं, तो देयर इज अ फियर ऑफ लूजिंग समबडी. सपोज आप मम्मी के पास जाके बोला, कहीं बोला, तो बोलते डोंट टेल एनीवन दिस हैज हैपेंड विद यू. Exactly. So the That's so true. closed, yeah. So what they do, they close the emotion. और मैं गंदा हूं या मैं गंदी हूं, ये फीलिंग कई बच्चों में देखने को मिलते हैं बिकॉज दे हैव Exactly. क्लोज. उनको बचपन में बंद कर दिया गया उसमें. तो जब इस तरीके के बच्चे बड़े होते हैं तो उनमें सेल्फ एस्टीम इश्यूज एंड अदर इश्यूज देखने को मिलते हैं. एग्जैक्टली एंड मैम जब हम इमोशंस की बात करते हैं तो इमोशन का एक अपनी अलग दुनिया होती है. तो एक बच्चा जो है वो उसका इमोशन ऐसे एक्ट यानी कि किसी भी सेक्सुअल अब्यूज के पहले किस तरह से रहता है एंड आफ्टर द सेक्सुअल अब्यूज हाउ इज द इमोशनल स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड. Vijay, I would like to share a case here so that you can understand Yeah, the things. definitely ma'am. I was, teaching in one of the medical college, and during the lecture, it's my habit, and I tell about this. I've started this from strongly from 2014. मैं बोलना Mm-hmm. स्टार्ट कर देती हूँ कि आई वर्क इन दिस एरिया, ये हमें इश्यूज देखने को मिलते हैं, सेक्सुअल अब्यूज पे भी हम लोग काम कर रहे हैं. तो जब मैंने अपने लेक्चर में ये चीज बताई और वहां पे वो जो ऑडियंस थी, जो बच्चे थे वहां पे, इट वाज 150 अराउंड स्टूडेंट्स इन दैट हॉल.
जब मैंने अपना लेक्चर ओवर किया और मैं बाहर आई, देयर वर 5 स्टूडेंट्स, 1 बॉय एंड 4 गर्ल्स. दे स्टार्टेड Girls. फॉलोइंग मी, मैम वी वुड लाइक टू टॉक टू यू समथिंग. वो एक दूसरे के चेहरे देख रहे थे. मैं कहा आई विल टॉक टू यू इंडिविजुअली, मीट मी, यू नो, एक एक करके आना. सो वन केम, से मैम समथिंग सीक्रेट वी वांट टू, यू नो, कुछ कहना है, आप टाइम कब का देंगे? ओके, ऐसे कर करके पांचों ने अपॉइंटमेंट लिए. इट वाज रियली Wow. डिसहार्टनिंग कि पांचों के पांचों केसेस में सेक्सुअल अब्यूज हुआ था, Oh वो God. भी चाइल्डहुड में. Oh, वन okay, वाज okay. डन बाय द फादर, Oh वन God. वाज डन बाय द फादर. ऐसा कोई रिश्ता नहीं है विजय जो हम ये बोल दे कि वो छूट जाएगा. कि इवन विमेन मदर, इफ यू, इतना पवित्र रिश्ता होता है ना जिसे हम कहते हैं कि इट्स अ ब्यूटीफुल, यू नो, टर्म, बट आई हैव हर्ड दैट आल्सो. सो उसमें सबसे मेजर इम्पैक्ट जिस बच्ची के ऊपर देखा, शी वॉज अ ब्यूटिफुल, यू नो, बहुत अच्छा गाती थी वो. पहले ई स्केल पे गाना या हायर स्केल्स पे गाना उतना आसान नहीं होता है, वो बच्ची गाती थी उस स्केल पे. उसने गाना बंद कर दिया था. सो Oh जब मैं God. उसके चाइल्डहुड में जाके बातें पूछना स्टार्ट की कि हाउ दिस स्टार्टेड, यू आर 21 राइट नाउ, और 21 ईयर्स के एज में आप आपने कितनी बार ये चीज किसी को बताई है? शी सेड दिस इज द फर्स्ट टाइम, यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसको मैं ये बता रही हूँ. ऐसे The first इतने person. साल But की. एंड जब मैंने पूछना स्टार्ट किया, इट टुक मी 2 सेशंस. फर्स्ट सेशन में शी वॉज जस्ट 3 years ओल्ड, क्योंकि फादर नहीं थे, मदर वॉज, यू नो, सिंगल पेरेंट. तो वो अपने किसी कजन के साथ घर में रहती थी. तो दैट कजन हैज सेक्सुअली अब्यूज दैट गर्ल व्हेन शी वाज 3 years ओल्ड. देन शी डिड, उसको समझ नहीं आया उसके साथ क्या होता था. उसको मेमोरीज थे, वो फ्रेश थे अभी भी. शी कांट स्लीप, उन मेमोरीज की वजह से सो नहीं पा रही थी. फिर व्हेन शी, यू नो, थोड़ी बड़ी हुई, ग्रेड 5th में आई, तो एक, यू नो, द कजिन, फिर से एक कजिन उनके घर पे रहने आती हैं. और वो गर्ल उससे कहती है तुम्हें डॉक्टर बनना है? बोले हाँ बनना है, इधर आओ मैं तुम्हें सिखाती हूँ कैसे बनते हैं. देन अगेन इट oh God. हैपेंड. एंड आई थिंक सो इट वाज द फर्स्ट केस ऑफ माय लाइफ वेयर आई हैव हर्ड किसी लड़की ने इस तरीके का एक्ट किया हो. एंड So inhuman, man. yeah, it was very touching, and I will say that the words which that girl gave me, she said मैम ये रेप से भी beyond था. It was the word which she gave. आफ्टर दैट, यू नो, और भी चीजें हुई, आगे चलते चले गए. वो मम्मी को नहीं बोल पाई, बता नहीं पाई, कुछ नहीं. अगेन देयर वाज अ कजिन एट होम. इट हैपेंड थ्राइस. शी वाज इन 9th एट दैट टाइम. 3 times, okay. 3 times. स्ट्रॉन्ग मेमोरीज. मम्मी को बोल नहीं पाई कुछ भी. शी केम इन 11th. पीसीएम लेना था, बायो भी लेना था, बायो लिया. बायो लेने के बाद में जब उसने बायोलॉजी ली तो मम्मा ने कहा पढ़ती क्यों नहीं हो, तुम्हारा मन क्यों नहीं लग रहा है? सो पढ़ाई तो मम्मी को दिख रहा है कि मन नहीं लग रहा है, पर ये इमोशंस जो सप्रेस्ड है, जो उसके साथ हुआ है, वो तो पूछने के लिए कोई स्पेस ही नहीं है. Same, ma'am. Same. Masked हो गया है वो चीज. हाँ. सो आफ्टर दैट उसने जब पीएमटी वगैरह की तैयारी की तो अच्छे से नहीं हो पाया. तो शी गॉट दिस नेचुरोपैथी कॉलेज एज अ ऑप्शन कि यहाँ नहीं हो रहा है तो अब यहाँ जाते हैं. फर्स्ट ईयर वॉज लिटिल ओके. यू वोंट बिलीव शी वॉज अ स्कॉलर, एंड उसका कभी भी 10th ग्रेड तक 90% के नीचे नहीं आए. Wow. शी फेल्ड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस के 3 या एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा मुझे, जहां तक मुझे ध्यान है 3 सब्जेक्ट्स में बैक लग गया. Oh God. एंड द प्रिंसिपल वाज सरप्राइज्ड कि ये बच्चा जो स्कॉलर रहा है, जो इतना ब्राइट है, ये पढ़ क्यों नहीं रहा है. सो एवरीबडी, यू नो, व्हेन आई टुक हर हिस्ट्री, टीचर से समझ में आया. एंड द अपीयरेंस, यू वोंट बिलीव, शैबिली ड्रेस्ड, मैले कपड़े, दे यूज्ड टू एप्रन पहनना होता है, पूरा मैला. इतना इतना बुरा हाल था उस बच्चे का, शूज तक पॉलिश नहीं होते थे उसके. सो आई वाज वंडरिंग, इस एज में अगर शूज भी पॉलिश नहीं है, हाइजीन भी नहीं है, व्हाट इज द, है क्या? सो Exactly. या, एंड आई आस्क्ड हर कि तुम गाना गाती हो? बोलती मैम गाते बनता नहीं है, मैं गा नहीं सकती अब. सी अगेन यू कैन सी द ब्लॉकेज ऑफ इमोशन. She can't Exactly, sing ma'am. because of that. There was a Mm-hmm. there was a beginning of hallucination and illusion. Illusions होते थे उसे grade 11th में.
उसको अलग अलग तरीके के लोग अपने सामने दिखते थे, सी बिकॉज फियर सप्रेस हो गया। तो अब अगर हम इसे दूसरे एंगल से, साइकोलॉजिकल एंगल से देखेंगे, तो ये दिखेगा कि इसको शिजोफ्रेनिया की स्टार्टिंग हो रही है। दैट वाज नॉट शिजोफ्रेनिया, दैट वाज अंडर डिप्रेशन, अंडर दिस पोस्ट ट्रॉमेटिक कंडीशन। ये इमेजेस, इस तरीके की चीजें होना स्वाभाविक ओके है। ओके तो शी ओके। स्ट्रगल्ड, 2 साल वो उस वर्ल्ड में रहती थी जहां अलग अलग फियरफुल लोग, डरावने भूत प्रेत उसके आसपास घूमते रहते थे, वो उससे बातें करते रहते थे, और ये उसके इमोशनल ब्लॉकेज का कारण था जब वो फर्स्ट ईयर में फेल हो गई। सो नाउ यू एग्जैक्टली। कैन अंडरस्टैंड कि हाउ हार्ड इट इज टू वन हु हैज गॉन थ्रू दिस, और उसको कह देना कोई कोई नहीं, हम हैं तुम्हारे साथ, ये कह तो देते हैं हम, पर सी द जर्नी इज रियली डिफिकल्ट, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। एंड व्हाट द अदर साइड इज, जब ये इस तरीके की चीजें आपको कोई बता रहा होता है, तो उनको रिवाइज करना बार बार, अगर वो रिवाइज कर रहे हैं तो वो विक्टिम एग्जैक्टली। बने रह जाते हैं। वो भी बहुत सो ट्रॉमेटिक इट, होगा ये। या सो इट इज व्हेन यू आर, आप इस तरीके के केसेस अगर ले रहे हैं या लोगों से मिल रहे हैं, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, बार बार उनका पास्ट रिवाइज ना करें, आगे ले जाएं। या मैम ये तो ओके, सोशल फैक्टर्स में हमने बात कर ली। अगर हम थोड़े लीगल मैटर्स में जाएंगे तो कैन आई गेट अ फ्यू इनसाइट्स की लीगल मैटर्स में इन सब केसेस के लिए कैसा सराउंडिंग है वहां पे? सी, जब हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की बात करें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एडल्ट्स, हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में इन आवर कंट्री देर इज अ एक्ट नाउ कॉल्ड पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। इन ओके। दैट इवन दे कैन, आप वेबसाइट पे जाइए, इसकी दो दो अच्छी चीज भी और एक बुरा साइड भी, आपको बहुत ध्यान रखना है इस एक्ट को यूज करते समय, और बहुत सिंसेरिटी से इस चीजों के ऊपर काम करना है। पहले अवेयरनेस नहीं थी, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी और ये एक्ट नहीं था, तभी भी मैं ऐसे केसेस देख रही थी, पर मुझे समझ में नहीं आता था कि कौन से एक्ट और कैसे ले जाना है इन चीजों को। नाउ देर इज अ एक्ट पॉक्सो, आप ई पॉक्सो भी है, एनीबडी जिसको मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, उसके साथ कुछ हुआ, तो दे आर इमेजेस अवेलेबल लाइक ऑनलाइन अब्यूज, तो यू क्लिक इट, उनके बिहाफ पे कोई भी वहां पे जाके वो कंप्लेन फाइल कर देगा उस आदमी के अगेंस्ट। ओके ओके, ओके। सो इट्स अ इजी प्रोसेस, बट वाह। द अदर साइड इज, ध्यान रखिए, अनबेलेबल है जो उसमें जाएगा अंदर। ओके, ओ द अदर गॉड। साइड। ओके ओके। So you have to think before you are filing. इसका ओके। I don't know how people will take it, पर जब भी हम इस तरीके से पेरेंट्स से पूछते हैं कि आपको पॉक्सो लगाना है, आप आगे आइए, दे स्टेप बैक। एग्जैक्टली। द दे डोंट वांट कि हमारे को कोई हार्म हो, या हमें कुछ लफड़ा नहीं चाहिए इसमें, द वर्ड इज दिस, उनको आगे नहीं एग्जैक्टली। नहीं आना है। तो कई कई में मेहनत लगती है, मेरे अकेले के करने से नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता अकेले के करने से। आई नीड अ कॉपरेशन ऑफ सम एनजीओ who are working in this field, specialized people, the one who are specialized in handling these things, lawyers, जो इन चीजों को कर पाते हैं। बट एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, कि आपने कंप्लेन कर ली, आप चीजों को आगे ले गए, पर उस बच्चे का क्या, उसके साथ जो चीजें अभी हैं वो कैसे ठीक होगी? एग्जैक्टली। क्वेश्चन ये आता है, अगेन द क्वेश्चन इज, एक्ट इज देयर, पर उसका जो प्रोसेस है रिहैबिलिटेशन का, वो अभी भी उतना परफेक्ट नहीं है। सो पीपल आर वर्किंग हार्ड, ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं कर रहा है, बहुत लोग काम कर रहे हैं स्टिल। In our city we are working, like Kala ma'am and other people, we have combined, प्रीति मेरे से पहले थी, तो रेज एंड राइस करके पूरा एक फोरम है, ये लोग उसमें वाह। खूब काम करते हैं। देयर इज अ अवेयरनेस एक्ट इन दैट, सेंसिटाइजेशन है, काफी चीजें हैं। सो विजय, आपको आवाज आ रही है मेरी? क्लियर मैम है आवाज आवाज? आ रही है, माय आपकी थोड़ी वीडियो वॉइस इज लैग हो क्लियर रही टू है। यू? वीडियो थोड़ी लैग हो रही है, ऑडियो क्लियरली आ रहा है मैम। हेलो, या
सो जैसा कि I'm सोनम audible, मैम ने Vijay? बताया कि मैम यू आर ऑडिबल बट वीडियो थोड़ा लैग हो रहा है। Hello? मैम वीडियो इज लैगिंग अ लिटिल बिट एल्स वे। सो जैसा कि Vijay, I'm सोनम audible? मैम ने अभी मैम यू आर Hello? ऑडिबल बट वीडियो इज लैगिंग। सो एज वी ऑल कैन सी कि सोनम मैम ने हमको इंसाइट्स दी किस तरह से एक बच्चे का Okay. जो इमोशनल। Okay. Okay. So हेलो you can मैम, ask आर यू बैक? the other things, please. Go ahead. ओके। सो मैम जैसा आपने बताया कि इतने सारे एनजीओज हैं, हम इतने सारे मूवमेंट्स चला रहे हैं, हम इतने सारे कैंपेन्स इसके लिए रन कर रहे हैं, बट फिर भी ये इंडियन जो इंडियन पेरेंट्स है बोलना चाहिए, जब इनको अपने बच्चों के बारे में ऐसे केसेस के पता चलता है या तो वो डायरेक्टली बताते हैं या इनडायरेक्टली, तो फिर भी वो उसके अगेंस्ट में लीगल कोई भी एक्शंस लेना क्यों अभी भी प्रेफर नहीं करा जाता है? लाइक वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, तो इसका क्या ओपिनियन है आपका इसके ऊपर? Okay, I think ma'am is having a little technical issue at the end. So the thing that I would like to mention here is about a real life incident that I read on the article, and उस आर्टिकल में ये चीज बताई गई थी कि वो जो जो सर्वाइवर है, सबसे पहली चीज तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज है कि आई हैव रेड इन सो मेनी न्यूज़पेपर, सो मेनी आर्टिकल्स कि हम किसी भी रेप जिसके साथ हुआ है, जिसके साथ जो चाइल्ड है उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, उन सभी लोगों को विक्टिम बोला जाता है। तो दैट इज Yes, अ yes, वेरी I'm इंपॉर्टेंट here. थिंग कि हम I'm here. Vijay, you can ask the question. ma'am, actually I'm continuing with a short information, so may I, and then I can proceed with the question. Okay, so the thing that I was mentioning here is सबसे पहले इनको विक्टिम बोलना हमको बंद करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर नॉट विक्टिम, दे आर दी सर्वाइवर्स। वो इतने ही ट्रॉमेटिक इमोशनल स्टेट से निकल के इस जगह पे आए हैं। That is the reason we have to first call them survivor. So the case I was sharing was of a girl who underwent all of these, and the location is actually near to my location. That's the reason I'm able to share this thing with you. And the girl was the survivor of, you know, the sexual abuse by her own father. And the way she was at her state, she is actually a very bright student. If we talk about having so many talents like management, dancing, and every other qualities are there, but when it came to this, she broke. And definitely everyone can broke, everyone can get broken by these acts, and when it is done by our own family members, that's another big thing. So ma'am, can we have you again? Am I audible, ma'am? Yeah, yeah. Am I audible? Ma'am, your voice is lagging actually. No, ma'am, you're not audible at the moment. So, as we can proceed with our discussion on this particular topic when it comes to child sexual abuse, because we already know what type of condition our country is facing when it comes to rape as well. We have so many physical, sexual, and every other type of violence which our country is facing, but we don't really have any on hand solution. हम सोशल मीडिया यूज तो कर रहे हैं इस चीज के लिए, बट वो चीज क्या ऑफिशियल्स तक पहुंच रहा है? क्या गवर्नमेंट इस चीज को लेके कुछ कर रही है? एंड ये गवर्नमेंट, ओके दैट्स फाइन, गवर्नमेंट इज वन एस्पेक्ट, बट व्हाट अबाउट एवरी अदर इंडिविजुअल इन आवर सोसाइटी? क्यों हमारी सोसाइटी अभी भी
ऐसे victims को, and even I have seen the particular girl, the survivor that I talked about, she also faced a social discrimination after this thing was revealed in the neighboring houses of the same. That's another big question कि why हमारी society भी इस चीज को लेके बहुत ही ज्यादा discriminating है. The survivor still faces social discrimination. Like उसको अभी सबसे ज्यादा जरूरत है इमोशनल सपोर्ट की, सबसे ज्यादा जरूरत है वैल्यू देने की, सबसे ज्यादा जरूरत है उनको खुद के आंख में उठाने की. बिकॉज दे when you are a survivor, let me tell you what exactly you feel. When you are a survivor, if the accused person has touched you here, when you touch your hands here, no, you are able to feel कि हाँ ये वो जगह है जहाँ पे मुझे ऐसा चीज करा गया था. So I think ma'am is back with us. विजय, go ahead, I can hear you. अब मुझे तो Okay. तुम्हारी आवाज. So yes. okay, You tell. okay. So great. So members, we have Now it is Sona clear? ma'am back again in the live. Yes ma'am, it's clear. I think so network issue at your end. I think so is it audible now? Ma'am, you're audible, but your video is lacking actually. Backstage members, can I just know if she's audible, or maybe I have connection with my technical? Vijay, can you hear me? Ghazal? Ma'am, your voice is not audible again. So, Ghazal, can we please have you on stage? We can have a discussion on child sexual abuse. Yeah. Hi, Hello. Vijay. So that's my another question, Ghazal, that I was raising कि why हमारी society भी इस चीज को लेके अभी भी इतनी conservative है? Yeah, I think किसी भी नॉट ओनली मेरा निवृत्ति मैम के साथ भी डिस्कशन हुआ था कि हम दोनों लड़के लड़की को हम लड़कियों को तो बोलते हैं कि आप ये करो वो संभाल के रखो, बट हम लड़कों को भी बोलना चाहिए हमें. एंड इंडिया में स्पेसिफिकली क्यों ये इतना बड़ा एक टैबू है कि क्योंकि यहाँ पे लोग बात नहीं करते. सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में लोग बात नहीं करना चाहते, क्योंकि बोला जाता है कि अरे ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, जबकि यहाँ के रेट बहुत हाई हैं इंडिया के. हर एक आई थिंक लास्ट ईयर एंड लास्ट टू लास्ट ईयर के स्टैटिस्टिक्स वो सो हाई कि हर महीने हर 10 दिन में हमको सेक्सुअल अब्यूज़ का और ये सब का हमें वो आ रहा है. Exactly. तो आई वॉज एक्चुअली वेरी मच शॉक कि हर 10 दिन में सेक्सुअल अब्यूज़ का आ रहा है. एंड सो स्मॉल किड्स 8 मंथ्स की बच्ची, 9 साल की बच्ची, ऐसे. तो आई थिंक ये बहुत बड़ा इशू है जो इंडिया में लोगों को डिस्कस करना चाहिए. एंड वी गॉट अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस अबाउट इट, एंड आई थिंक इट्स ग्रेट. Exactly. Because so we are still facing some echoing issue. Can you hear me?